Okay. So company directors, we all know who is a director. Who is a director? Who make decisions of the company, जो head होते हैं और shareholder जिनको अपने behalf पर hire किया. Leaders are basically known as the owners of the company, whereas the directors are known as those who are running the company, or they are governing the company, basically managing the mission, vision, and the policies and all. But the owners, they are only investing. They're investing their money. And they are concerned, definitely. If they are majority, if they are a major shareholder, they would be very much keenly interested in the running and the decision making of the company. Whereas the owners or the shareholders who don't have a huge investment in the company, they would not be least bothered about how the company is run. They would be only concerned about their dividend and their capital gain. That's all. So here we have 9 topics that we need to do in this chapter. The role of the directors, appointment of directors, remuneration, vacation of office, disqualification of directors, powers of directors, powers of chief executive officer, powers of an individual director, and duties of director. So let's jump into the chapter. This chapter is more of a broad forward knowledge from F1, and it is more of learning chapter rather than understanding. So we are just going to deal the chapter accordingly. So any person who occupies the position of director is treated as such, the test being one of function. Please read the definition. A director is a person. A director is a person who is responsible for the overall direction of the company's affair. In a company law, director means any person occupying the position of director by whatever name called. If you're occupying the position of a director, you are a director. Okay. अब होता पता है क्या यहाँ पे why is it written that any person occupying the position of director by whatever name called, why they are writing like this? Because sometimes it is seen that the key personnel or the key person who is taking the decisions is this, whereas for name sake एक डायरेक्टर की कुर्सी पे एक बंदे को बिठाया हुआ है जिसका नाम मिस्टर ए है, बट मिस्टर ए कोई कदम उठाता ही नहीं इससे पूछे बगैर, और ये भी मतलब इसी तरह से इसकी पोजीशन है कि इसकी हर बात मानी जाती है. तो ये जो डायरेक्टर ए है, ही इज एक्चुअली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस ऑफ मिस्टर एक्स. So despite the fact Mr. X is not officially sitting on the seat or on the chair of the director, he is occupying the position of the director by whatever name called. ठीक. Okay. नेक्स्ट आगे बढ़े. डी ज्योर एंड डी फैक्टो डायरेक्टर्स. यहाँ पे ये बात और भी वाजे हो जाएगी, जरा पढ़िए. Most directors are expressly appointed by a company and are known as de jure directors. A de facto director is anyone who is held out by the company as a director, performs the functions of a director, and is treated by the board as a director, although they have never been validly appointed. ठीक. इट इज क्लियर. Yes. अभी जो एग्जांपल हमने दी तो उसमें यही है कि एक डायरेक्टर है जो वाकयतन उसको डायरेक्टर की कुर्सी पे बिठाया गया है, अपॉइंट किया गया है, दैट इज मिस्टर ए. बट एक्चुअल में चल किसकी रही है? मिस्टर बी की, Yes. मिस्टर एक्स की. तो ही Yes. मिस्टर ए इज डी ज्योर डायरेक्टर एंड मिस्टर एक्स इज डी फैक्टो डायरेक्टर. डी ज्योर इसको अपॉइंट किया गया, डी फैक्टो उसको अपॉइंट नहीं किया गया, बट कंपनी इज हेल्डिंग हिम आउट एज द डायरेक्टर, ट्रीटिंग is getting treated by the board as a director, and they have never been validly appointed. ठीक है. So de jure and de facto. Next, shadow directors. A person might seek to avoid the legal responsibilities of being director by avoiding appointments as such, but using their powers, say as a major shareholder, to manipulate the acknowledged board of directors. In other words, they seek the power and influence that come with position of director, but without the legal obligation it entail. again, Company law seeks to prevent. Yes. shadow Sorry. director is a person. Okay. जो डी फैक्टो डायरेक्टर है ना, उसको आप शैडो डायरेक्टर भी कह सकते हो, क्योंकि वो दर हकीकत उसने ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली,
but everybody is treating him as a director, and he has the power and influence of a director, and he is running the organization like a director. Just the fact that he has not been appointed officially as a director, and therefore by not being appointed, he does not have any legal obligations that entails with it. So company law seeks to prevent this abuse, and this comes under abuse, being a shadow director, by extending several statutory rules to shadow directors. Shadow directors are directors for legal purposes. If the board of directors are accustomed to act in accordance with their decisions, in accordance with their directions and instructions. This rule does not apply to professional advisors merely acting in that capacity. Now, professional advisors are not behaving as a shadow director because they have been appointed to advise. कुछ advisors होते हैं ना जो आप जिनको अपॉइंट करते हो एडवाइस के लिए, तो आप लेते हो, मशवरा करते हो, हर बात का मशवरा करते हो उनसे। जब आप हर बात का मशवरा करते हो उसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टर बन गए, वो शैडो डायरेक्टर नहीं है। प्रोफेशनल एडवाइजर्स आर डिफरेंट, शैडो डायरेक्टर्स आर डिफरेंट। ठीक है। Okay. Now, how these two differ, shadow directors and de facto directors? Please read. Shadow directors differ from de facto directors because the public and the authorities are rarely aware of their existence, whereas a de facto director performs the everyday tasks that a director would dealing with supplier and customers and being present at general meeting. The shadow director exert their influence away from the day-to-day running of the business. क्या कह रहे हैं? शैडो डायरेक्टर लाइक डे टू डे उसमें नहीं आता बिकॉज उनकी वो ज्यादा ही वो पब्लिकली नहीं होता, तो वो डे टू डे में भी नहीं आ सकता अब मैं रनिंग ऑफ द बिजनेस में। और शैडो जो डी फैक्टो डायरेक्टर, है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शैडो डायरेक्टर बेसिकली छुप के काम कर रहा है, तो सबके सामने आ नहीं रहा। जब सबके सामने नहीं आ रहा तो पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ हिम। बट डी फैक्टर डायरेक्टर वो सबके सामने आ रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं एवरीडे टास्क, बट उसको किसी ने अपॉइंट नहीं किया हुआ। ये फर्क है। और शैडो डायरेक्टर पीछे से बैठ के, जैसे स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता जो स्क्रिप्ट वो लिख रहा होता है, बाकी कैरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो शैडो डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज एक्चुअली राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड जिसके इशारे पे पूरी कंपनी चल रही है, बट वो सामने नहीं आ रहा। सामने कुछ और लोग कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं और सबको लग रहा है कि उनका डिसीजन। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। अच्छा, और अब आप डी मुझे, फैक्टो डायरेक्टर भी तो डे टू डे डे में कैसे आ सकता है, वो भी अपॉइंटेड तो नहीं होता। वो अपॉइंटेड नहीं होता, मगर आपको, आपने पता नहीं देखा हो नहीं देखा हो कि बाज औकात कंपनीज में कुछ बड़े एक्टिव लोग होते हैं, समझ राइट, रही है। हालांकि राइट, उनकी पोजीशन एज अ सीईओ है या कोई और पोजीशन पे है वो, बट उनका उनको बड़ा शौक होता है काम करने का, और उनको बड़ा राइट। शौक होता है एक्टिवली और अलर्ट होके सब काम करने का। तो उनको किसी ने भी डायरेक्टर नहीं बनाया, बट वो खुद ही ना जिम्मेदारियां लेके ये कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, कर रहे हैं। और ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा, ना किसी ने अपॉइंट किया है ना कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो करो, कंपनी का तो फायदा होगा। राइट। समझ रहे? नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। A director may, if the articles permit, appoint an alternate director to attend and vote for them at board meeting, which they are unable to attend. Such an alternate may be another director, in which case they have the vote of the absentee as well as their own. More usually, they are outsider. Company articles could make specific provision for this situation. क्या कह रहे हैं? अल्टरनेट डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी कुछ हायर भी कर सकती है जब उनकी बोर्ड मीटिंग हो रही होती है, उसमें वोट करने के लिए अल्टरनेटिव डायरेक्टर्स को हायर भी कर सकती है, या फिर वो अपने ही कुछ जो डायरेक्टर्स हैं उनको वोट ज्यादा देके कि आप दूसरे का वोट भी कर सकते हैं और अपना भी वोट कर सकते हैं। एक और है,
एक मिनट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जरा ये दोनों मुझे पढ़े और नॉन एग्जीक्यूटिव भी। आप ये रीड करके रखें, मैं आपसे पूछूंगी क्या फर्क है। Okay. जी, पढ़ लिया। नहीं, मैं वो खोल रही थी अपना PDF, एक मिनट। Yes, Terim, how far have you read? I can't find the chapter You 279 can't on find, page. acha, no worries, please just read through this. No problem. Alternate director. A director may, if the articles permit, appoint an alternate director to attend and vote for them at board meetings which they are unable to attend. Sometimes when directors are unable to attend the board meeting, they can appoint someone on behalf of them to attend the meeting. Someone on Okay. behalf of them who would be able to vote and put forward the opinion of that original director. This person is known as alternate director. Okay. Next, what's the difference between executive and non-executive? Please go through executive and explain. Executive director is a director who perform a specific role in a company under a service contract which require a regular, possibly daily involvement in
Yes. What do you understand? Executive director is the one who performs a specific role in a company under a service contract which requires a regular, possibly daily involvement in management. He is working in the company as an employee on a daily basis, regular basis, under a contract. Simple. That's a director, executive director. Whereas who is a non-executive director? A non-executive director does not need to visit the company on a daily basis and does not need to perform a function on a daily basis. He or she comes on a visit, once in 6 months, maybe once in a year, maybe twice a year, and they just come to visit and to just go around and inspect. Is there something fishy going on in the company? Are the directors working honestly and transparently? And why these NEDs are experienced people and they are senior most in the industry, they are usually senior citizens, and therefore they have much of an experience that फेस देखकर ही पहचान जाते हैं कि भाई ये मसला है या ये चीज something is going wrong or something is fishy. Moreover, इसके अलावा भी अब जैसे बीच में पैंडेमिक आ गया था कोविड, so companies were actually confused what to do. So then in such situations that arises in the times of challenges, executive directors can take advice from non-executive directors on different matters. And that is the role of NEDs in any company. Contribute an independent view to the board's deliberations, help board provide the company with effective leadership, ensure the continuing effectiveness of the executive directors and management, and ensure high standards of financial probity on the part of the company. Who is Chief Executive Officers? He is also known as a Managing Director, is one of the directors company appointed to carry out overall day-to-day management functions. Number of directors. A company must have at least one director for a public company and two minimum for a, it's at least one director for every company. For a public company, it's at least two. There is statutory minimum in the UK, but the articles does usually impose a limit. All directors must be a natural person, not a body corporate. The directors must be a human, cannot be an artificial intelligence, cannot be another company. It has to be a human. Now, board of directors, of course, they are elected representative of the shareholders acting collectively in the management of a company's affairs. If at any point, Tahreem, you find any word difficult or anything which you are unable to understand, please stop me and ask, okay? Because I'm assuming two things. Number one, it is F1 brought forward knowledge, and number two, it is very easy to understand. When I'm just reading out the definition, it's easy to understand. Yes. The chair. According to the UK Corporate Governance Code, a company's chair is responsible for leading the board and ensuring its effectiveness. यानी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करने के लिए हमें एक पर्सन चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं चेयर या चेयरमैन. तो उससे क्या होता है कि डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, chaos, ये सब से बच जाते हैं. We all have to respect the chairman. And if he says that, okay, the board is adjourned, it means the board is adjourned. And if he says, kindly stop the debate has to be stopped. If he says the voting needs to be done, the voting needs to be done. So there has to be someone who needs to play the role of a chair. Otherwise, और ये you know कंपनी का इंडिविजुअल होगा या फिर sorry, ये हर कंपनी का इंडिविजुअल होगा चेयरमैन? हर कंपनी का इंडिविजुअल होगा, यस. एंड ऑल्सो बोर्ड मीटिंग्स बेसिकली हम कंडक्ट करने के लिए इनको रख रहे हैं, चेयरमैन बना रहे हैं कि भाई बोर्ड मीटिंग्स में जो डायरेक्टर्स है, बिकॉज देयर कैन बी 10 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, देयर कैन बी 15 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी. तो दिस इज नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स.
जब board of directors are all sitting on the same position, on the same post. One director is saying, yes, we should lock down the company during the COVID. The other director is saying, no, we should not. How will we run our economy will, fall or crash. We need to Right. remain open. अब दो डायरेक्टर्स हैं, कुछ लोग इस ओपिनियन के साथ हैं, कुछ लोग इस ओपिनियन के साथ हैं, किसकी सुनी जाएगी? Who's going to decide? So the chairman in this situation this helps to decide कि क्या करना है और किस तरह से किसी कंक्लूजन पे पहुंचे. Appointment of directors. How to appoint the directors? How are the first directors appointed by the company? Please read. Under the Companies Act 2006, the application of registration delivered to the registrar to form a company include particulars of the first directors with their consent on the formation of the company. Those persons become first directors. Next. Appointment of subsequent directors. Once a company has been formed, further directors can be appointed either to replace existing director or as additional directors. Appointment of further director is carried out as the article provide. Most of the company article allow for the appointment of director by ordinary resolution of the shareholder and by decision of the directors. Exactly. क्या कह रहे हैं? पहली दफा डायरेक्टर कौन चूज करेगा? जो कंपनी को रजिस्टर करा रहे होंगे वही जो है ना फर्स्ट डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं. Very good. Very good. And under the Companies Act 2006, application for registration delivered to the registrar to form a company includes particulars of the first directors. Very good. Next, appointment of subsequent director. उसके बाद जब कंपनी बन गई, सब कुछ हो गया, फिर उसमें अगर आप एडिशनल और डायरेक्टर्स भी लेके आना चाहते हो तो वो आप लेके आ सकते हो. और उसमें जो है ना आपको एडिशनल डायरेक्टर्स अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, न्यू अपॉइंट करना चाहें तो कर सकते हैं. और वो कैसे होगा? बाय ऑर्डिनरी और रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नंबर डिसीजन 2 बाय डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स की यानी कि शेयर होल्डर मीटिंग बुलाई जाएगी, वोटिंग होगी, दैट्स ऑल. डिसीजन ऑफ या फिर डायरेक्टर्स म्यूचुअली अग्री करें कि हाँ फलाने शख्स को भी बनाना चाहिए. नेक्स्ट, पब्लिसिटी. नोटिस देना है फर्स्ट डायरेक्टर्स के ज्वाइन कर लिए हैं, उनके नाम ये हैं, उनकी जिम्मेदारियां ये हैं. मस्ट बी विदिन 14 डेज. विदिन 14 डेज वी नीड टू गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार. कोई नया आ रहा है, कोई पुराना जा रहा है, 14 डेज के नोटिस में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना. एज लिमिट क्या है डायरेक्टर की? 16. मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है. रेम्यूनरेशन फीस तनख्वाह कैसे होगी? पढ़िए. directors are entitled to fees and expenses as directors are as per the articles and amalgamated and compensation for loss amalgamated and compensation for the loss of office as per their service contracts, which can be inspected by members. Some details are established in the director's remuneration report along with the accounts. Detail of director remuneration usually contained within their service contract. This is contract where the directors agree to personally perform services for the company. Okay, that's it. So directors की fees and expenses एक तो नंबर 1 आर्टिकल्स में मेंशन होती है. नंबर 2 एमोल्यूमेंट्स यानी कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस. यानी कि बाजू का जब कंपनी फॉर्म नहीं हुई भी होती तो उनके डायरेक्टर ही अपनी जेब से पैसे दे रहे होते हैं, तो उसका कभी कभी उनको नुकसान भी हो जाता है किसी चीज का, तो कंपेंसेशन भी हो रही होती है. एंड देन some details are also published in the director's remuneration report along with the accounts. यानी financial statements में भी जो डायरेक्टर्स की सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, बेनिफिट्स हैं, वो मेंशन किए जा रहे होते हैं टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. तो ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट, डायरेक्टर्स एक्सपेंसेस. रीइंबर्समेंट उनको हम कंपनी ने करना है अगर उन्होंने कुछ खर्चा कंपनी के लिए किया है अपनी जेब से. सो रीइंबर्समेंट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस, ये डेफिनेटली इसकी गुंजाइश भी है, उसकी इजाजत भी है. Where service contracts guarantee employment for longer than 2 years, then an ordinary resolution must be passed by the members of the company that the contract is with. यानी कि क्या कह रहे हैं? अगर तो कोई डायरेक्टर बनना चाह रहे हैं या अगर कोई डायरेक्टर चेंजेस चाह रहे हैं अपने रेम्यूनरेशन में,
तो उसको फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जाहिर है जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे इजाजत, उनकी रजामंदी, और उनकी रजामंदी कैसे आएगी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जरिए, यानी वोटिंग होगी, मीटिंग में बुलाया जाएगा, तो उसके जरिए अगर कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, बढ़वाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की कोई चीज, कोई बात, उनकी सैलरी से रिलेटेड, उनकी एम्प्लॉयमेंट की गारंटी से रिलेटेड, तो वो कहाँ होगी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस पढ़िए। Any director may receive non-contractual compensation for loss of office paid to them voluntarily. Any such compensation is lawful only if approved by members of the company in general meeting after proper disclosure has been made to all members, whether voting or not. This only applies to inconvenient payments. Approval is not uncovenanted payments. Approval is not required where the company is contractually bound to make the payment. Compensation paid to director for loss of office is distinguished from any payment made to directors as employee. For example, to settle claim arising from the premature termination of the service agreements. These are contractual payments which do not require approval in general meeting. नाउ कंपेंसेशन बेसिकली मींस कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई है और देयरफॉर आपको कंपेंसेट किया जा रहा है। अब वो ज्यादती लॉस ऑफ मनी की शक्ल में हो सकती है, लॉस ऑफ ऑफिस की शक्ल में हो सकती है, या कोई भी एक्स वाई जी अनएक्सपेक्टेड लॉस जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखा हुआ था, मगर आपका नुकसान हुआ उससे, उस हादसे से नुकसान हो गया, उस बात से नुकसान हो गया, उस मुआवजे से नुकसान हो गया, कुछ भी एनीथिंग। So now this compensation, if it is not given in the contract, nothing is mentioned in the contract, company can pay to them voluntarily, which is very much lawful and no problem in that. Now this only applies to uncovenanted payments. बाज़ औक़ात मीटिंग बुलवानी पड़ती है, मीटिंग बुलवा के मेंबर से वोटिंग करवाना पड़ता है, मगर वो तभी वोटिंग होगी कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में इसके हवाले से कुछ भी मेंशन नहीं है, और अगर कुछ मेंशन है तो फिर मीटिंग बुलवाने की जरूरत नहीं है, कंपनी को वो हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक परफॉर्म करना पड़ेगा। Compensation paid to directors for loss of office is distinguished from any payments made to directors as employees. As employee उनको जो उनकी सैलरी रेम्युनरेशन वो तो मिल ही रही है, वो तो अलग है, पर जो कंपेंसेशन है वो चीज अलग है। अब अगर उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट से पहले उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, लाइक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और उनको 1 साल में बोला जा रहा है आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी, और इसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तब आपको अप्रूवल कराने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। जी जी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन रिपोर्ट, रिपोर्ट भी तैयार होगी। क्यों? टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑफ द कंपनीज पॉलिसी, बिकॉज डायरेक्टर्स पोजीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, देयरफॉर उनकी हर चीज ट्रांसपेरेंटली शो होनी चाहिए, उनका पैकेज बताया जाए। रोल ऑफ द बोर्ड एंड रेम्यूनरेशन कमेटी इन डिसाइडिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन रिपोर्ट में आ रहा होगा। ठीक है। Quoted companies are required to allow a vote by members on the directors remuneration report. कोटेड कंपनीज यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड हैं, स्टॉक मार्केट में कोटेड हैं, उन कंपनीज में जो मेंबर्स हैं उनकी वोट बहुत जरूरी है, उनका वोट बहुत जरूरी है। किस लिए? डायरेक्शन रेम्यूनरेशन रिपोर्ट इशू करने के लिए या उसको अप्रूव करने के लिए। आइटम्स नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट एंड आइटम्स सब्जेक्ट टू ऑडिट, यानी डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन की रिपोर्ट है उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो ऑडिट के डोमेन में फॉल करेंगी एंड ऑडिटर को जाके चेक करना है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो ऑडिटर को छेड़खानी नहीं करनी, उसमें कोई तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है। तो जरा बुलेट्स पढ़िएगा। आइटम्स नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट। Consideration by the Directors Remuneration Committee of matters relating to Directors Remuneration, statement of company policy on Directors Remuneration, performance graph, share performance, Director service contract date, unexpired length, and compensation payable for early termination.
कोई पॉइंट जो नहीं समझ आ रहा? समझ आओ guys. नेक्स्ट आइटम सब्जेक्ट टू ऑडिट. Salary fees payable to each directors, bonuses paid to be paid, expenses, compensation for loss of office paid, any benefit received, share options and long-term incentive scheme, performance criteria and condition, pensions, excess retirement benefits, compensation to past directors, some paid to third parties in respect of the director's services. ठीक है. ये नेक्स्ट. लास्ट वाला का क्या मतलब है? सम पेड टू थर्ड पार्टीज. सम्स पेड टू थर्ड पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स सर्विसेज. यानी कि बाजूकात ऐसा होता है कि डायरेक्टर की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बिहाफ पे कोई और आके काम कर रहा है, तो जो आके काम कर रहे हैं उसको उसके हिस्से का पे तो देना पड़ेगा ना. ओके ओके राइट. तो ये. जी. नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ डायरेक्टर सर्विस अग्रीमेंट्स. पढ़िए. A, a company must make available for inspection by members a copy or particular of contract of employment between the company or a subsidiary with the director of the company. Such contract must cover all service that a director may provide, including services outside the role of a director and those made by a third party in respect of services that a director is contracted to perform. Contracts must be retained for 1 year after expiry and must be available either at the registered office or any other location permitted by the Secretary of the State. Prescribed particular of directors emolument must be given into the accounts and also particulars of any compensation for the loss of office and director's pension. क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर के साथ जो कंपनी का मुआयदा है, अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऑडिटर को उसको इंस्पेक्ट करने का पूरा राइट है. वो चेक कर सकता है, देख सकता है. इवन शेयर होल्डर्स भी जाके डायरेक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कंपनी के साथ, वो जाके उसको देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि डायरेक्टर इज नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम देम एंड ही इज बीइंग ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट एंड फेयर. एंड वो कोई अपना जाती बेनिफिट्स नहीं ले रहा कंपनी से, जितना जायज है उसका हक बनता है एज एन एम्प्लॉई उतना ही ले रहे हैं. एंड देन कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी रिटेन फॉर 1 year आफ्टर एक्सपायरी. यानी एक दफा ये एक्सपायर हो जाए, फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट था आपके और मेरे दरमियान, वो 1 साल का था, 1 साल खत्म हो गया, तो उसके बाद भी 1 साल तक हमें वो कॉन्ट्रैक्ट सेफ रखना है फॉर रेफरेंस. नेक्स्ट, वेकेशन ऑफ ऑफिस. A director may vacate डायरेक्टर office. का ऑफिस कब कब विकेट हो सकता है या कब कब वो छोड़ के मतलब जा सकता है. सो नंबर 1 इज रेजिग्नेशन. नंबर 2, नॉट गोइंग फॉर री इलेक्शन. टर्म खत्म हो गया 1 साल का, वो अगले साल इलेक्शन में खड़ा नहीं होना चाह रहा. नंबर 3, डेथ, मौत हो गई, इंतकाल हो गया. नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी ही खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई. 5, डायरेक्टर को रिमूव कर दिया गया, कोई उसने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से उसको हटा दिया गया. डिस्क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालीफाई हो गया ड्यू टू सम रीजन. सो दीज आर द 1 2 3 4 5 6 ways in which a director can be removed or is removed from the office or he may leave the office. Okay. Next, retirement and re-election. पढ़िए. The model articles for public companies provide the following rules for the retirement and re-election of the director rotation at AGMs. At the first AGM of the company, all directors shall retire. At every subsequent AGM, any directors appointed by the other directors since the last AGM shall retire. Director who were not appointed or re-elected at one of the preceding two AGMs shall retire. क्या कह रहे हैं? रिटायरमेंट और री इलेक्शन किस बेसिस पे हो रही है? सबसे पहली बात ये बताई जा रही है दैट ऑल डायरेक्टर्स आर ऑन रोटेशन बेसिस.
मतलब अगर आप इस साल कंपनी के डायरेक्टर बन गए हो, उसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगले 10 सालों तक आप ही रहोगे। इस साल Okay. बन गए हो तो अगले साल रिमूव भी हो सकते हो, और दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा डायरेक्टर बनने का, और सिर्फ आप ही का राज नहीं चलेगा। Okay. ठीक है। तो रीअपॉइंटेड यानी आपको दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा अगर आप दोबारा डायरेक्टर की पोजीशन पे आना चाहते हैं। और फिर अगर आप रीअपॉइंट नहीं हुए तो फिर आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो रिटायर्ड बाय रोटेशन डायरेक्टर्स और रिटायर्ड बाय रोटेशन आर एलिजिबल टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर री-इलेक्शन। They can control over their performance and it's just about electing them. Underperform अगर कोई कर रहा है, rather than having to go through the process of seeking resolution to remove a director, members have the opportunity every 3 years to dispose of an underperforming director by simply not electing them. जरूरी नहीं कि आप रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को रिमूव करवाओ, बल्कि आप उसको वोट नहीं दो। जब वोट नहीं दोगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आपको डायरेक्टर्स को हटाने नौकरी से, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, मीटिंग बुलवानी पड़ेगी, और उस मीटिंग के लिए स्पेशल नोटिस जारी होगा जिसमें कि प्रपोज होगा कि हम इस पर्सन को रिमूव करना चाह रहे हैं एज अ डायरेक्टर, रीजन ये रीजन, और फिर डायरेक्टर को एक मौका दिया जाएगा कि वो अपने डिफेंस में कुछ बोल सके। And on receipt of the special notice, the company must send a copy to the director, who may require the memorandum of reasonable length shall be issued to members. They also have the right to address the meeting at which the resolution is considered. यानी वो मीटिंग में आके अपने डिफेंस में कुछ कह सकते हैं, उसके पास पूरा राइट है। Articles and service contract of the director cannot override the statutory power. Very important line, Tahleen. Please highlight it with you. ये जो आर्टिकल और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ना, आर्टिकल्स कंपनी के आर्टिकल्स, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट जो डायरेक्टर का है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट ओवरराइड, ओवरराइड नहीं कर सकता या छलांग नहीं सकता द स्टैट्यूटरी पावर। एनी टाइम ऑफ द डे, एनी गिवन डे ऑफ द ईयर, the state or the government has complete, full and full power and authority to dismiss the director, to appoint a director, or whatever it may choose. हर तरह से स्टेट के पास पावर है, और उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट रोक नहीं सकता, कोई आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी रोक नहीं सकते। The power to remove a director is limited in its effect in 4 ways. Number 1, रिस्ट्रिक्शन क्या है ऑन पावर्स टू रिमूव डायरेक्टर्स। पहली रिस्ट्रिक्शन है शेयर होल्डिंग क्वालिफिकेशन टू कॉल अ मीटिंग। कोई शेयर होल्डर मीटिंग कॉल कर ही नहीं सकता जब तक उसके पास एटलीस्ट 10% शेयर्स पेड अप कैपिटल ना हो, तब तो वो ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। फिर शेयर होल्डिंग टू रिक्वेस्ट अ रेजोल्यूशन, कि उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना है टू रिमूव अ डायरेक्टर, एंड देयरफॉर where a meeting is already convened, 100 members holding an average of 100 pounds of share capital each may request a resolution to remove a director. यानी 100 members का बोलना जरूरी है to remove a director. Weighted voting rights. A director who is also a member may have weighted voting rights. यानी कि एक डायरेक्टर जो शेयर खुद भी एक शेयर होल्डर है तो उसके पास एक weighted voting right होगा under the constitution, so that they can automatically defeat any motion to remove them as a director. And then third, lastly, class right agreement. It is possible to draft a shareholder agreement stating that a member holding each class of share must be present at a general meeting to constitute quorum. Quorum, किसी भी मीटिंग के quorum को क्या कहते हैं तहलीम, क्या मतलब? वो जो क्वेश्चन वाला होता है। quorum का मतलब होता है द रिक्वायरमेंट, यस, राइट। मीटिंग होल्ड करने की या ये फैसला लेने की जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए मौजूद, उसको हम कहते हैं कोरम। और उस कोरम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हों, बल्कि
हर कंपनी अपने लिए कोरम अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि क्या होगा। तो कोरम यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो कह रहे हैं कि हर क्लास ऑफ शेयर होल्डर का होना जरूरी है। यानी एक होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो दोनों की मौजूदगी जरूरी है, दोनों की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इसके बगैर हम किसी डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते। Okay, ठीक है, नेक्स्ट। right. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई कब कब होंगे, किन किन सिनेरियोज में होंगे? प्लीज रीड द बुलेट्स। A person ceases to be a director by virtue of any provision of the Companies Act 2006 or is prohibited from being a director by law. A bankruptcy order is made against that person. A composition is made with that person's creditors, generally in satisfaction of that person's debt. A registered medical practitioner who is treating that the person gives a written opinion to the company stating that the person has become physically or mentally incapable of acting as a director and may remain so for more than 3 months, or notification is received by the company from director that the director is resigning from office and such resignation has taken effect in accordance with its terms. जी, कौन सा पॉइंट है जो नहीं समझ आया? डिस्क्वालीफाई कब कब हो रहे हैं? जब कंपनी एक्ट 2006 में इस तरह की कोई प्रोविजन हो कि जिसमें प्रोहिबिट किया जा रहा है कि ये शख्स डायरेक्टर नहीं बन सकता। So by Okay. the Companies Act 2006 provision, there could be a condition where the person is not fulfilling by the condition and therefore he cannot become the director. He is disqualified to be a director. Second point, a Okay. bankruptcy order is made against that person. वो पर्सन बैंकरप्ट हो गया भाई, वो डायरेक्टर कैसे बन सकता है किसी भी कंपनी का? थर्ड, a Yeah. composition is made with that person's creditors generating satisfaction of that person's debt. उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है, वो डायरेक्टर कैसे बन सकता है कंपनी का? A registered medical practitioner who is treating that person gives a written opinion to company stating that the person has become physically or mentally incapable. अगर ये बात रिटन में मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से आ गई, फिर वो पर्सन कैसे डायरेक्टर बन सकता है? He is disqualified. Next, Mhm. notification is received by the company from the director that the director is resigning from the office. वो खुद उसने रिजाइन कर दिया। Okay. तो ये वो 5 सिचुएशंस हैं जहाँ पे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालिफिकेशन अंडर स्टैट्यूट यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट या कोर्ट डिस्क्वालीफाई कब करेगा? कंपनीज डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1986 के मुताबिक formally disqualify a person from being a director in any way directly or indirectly being concerned or taking part in the promotion, formation or management of the company. The terms of the disqualification order are very wide and include acting as a consultant to a company. The act, despite its title, is not limited to the disqualification of people who have been directors. Any person may be disqualified if they fall within the appropriate grounds. यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई चीज जो नहीं समझ आई? Now the explanation. Great. अब यहाँ पर ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ये बुलेट्स हैं, जरा पढ़े इनको एंड देन आपने मुझे समझाना है क्या मतलब। Okay. A person is convicted of an indictable offense either in the UK or overseas in connection with the promotion.
जी तहरीम, आपने पढ़ लिया? जी। बताएं, समझाएं। फर्स्ट वाला पर्सन तब कन्विक्टेड ऑफ क्राइम हो सकता है जब उसने कोई सीरियस क्राइम किया रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ द कंपनी, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, और उसको 15 ईयर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और 5 ईयर अगर उसने माइनर क्राइम किया है तो। और दूसरा है कि उसने प्रोविजंस लाइक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कराए थे टू द रजिस्ट्रार, या चीज़ें उसने नहीं भेजी थी, अकाउंट्स या कुछ भी उसने नहीं भेजा था टू द रजिस्ट्रार, तो उसको 5 ईयर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर वो 3 डिफॉल्ट्स करे इन 5 years, तो दे आर एक कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ persistent default, and a राइट। maximum period of disqualification is 5 months. This is उसके important. बाद 3 अगर defaults in 5 years. Next. उसके बाद अगर किसी उसने फ्रॉड किया, फ्रॉड ट्रेडिंग की हो, तो मैक्सिमम 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन। 15 years है ना लिखा? यस। 15 years he would be disqualified. Next. The Secretary of State. Acting on a report made by the inspector or from information or document obtained under the Companies Act applies to the court for an order, believing it to be expedient in the public interest. Again, इसमें भी 15 साल की सजा. Next, where a director was involved in certain competition violations. Again, मुझे डी 15. वाला समझ नहीं आ रहा। Where a director of an insolvent company has participated in wrongful trading, maximum again 15 साल. What is an मुझे insolvent डी company? वाला समझ नहीं आ रहा। जी तहरीम, मैं उसको समझाती मुझे हूँ. डी समझ नहीं। बिल्कुल, मैं ओके। डी पॉइंट भी समझा रही हूँ आपको. पहले इसको बताएं मुझे, इंसॉल्वेंट कंपनी का क्या मतलब है? व्हाट्स एन इंसॉल्वेंट कंपनी? What is the meaning of solvent company and what is the meaning of insolvent company? I just forgot I had। Hmm? मैं भूल गई, मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा. Solvent is basically when you have cash to pay off your creditors. Insolvent when you don't have a single penny to pay off your creditors. Right. तो इंसॉल्वेंट कंपनी के पास कैश खत्म हो जाता है, और सॉल्वेंट कंपनी के पास ठीक है वो कारोबार Yes, बंद करना चाह रहे हैं, बट उनके पास कैश है कि वो अपने लाइबिलिटीज और लोन्स को पे ऑफ कर सके. right. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस. Yes. नाउ कमिंग टू द पॉइंट डी, वेयर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट लेवल पे एक सेक्रेटरी होता है. When the Secretary of the State, acting on a report made by the inspectors or from information or documents obtained under the Companies Act, applies to the court for an order, believing it to be expedient in public interest. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझने वाली. ठीक है भाई, सबसे पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं. नंबर 2, Right. इसको वो सेक्रेटरी मत समझिएगा जो हम आम जबान में या आम लाइफ में अपने देख रहे होते हैं कि असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी. इट्स नॉट दैट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन एंड वेरी पावरफुल पोजिशन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. इसके पास बकायदा पूरी रिपोर्ट बन के आती है कि मसला क्या था, डायरेक्टर ने कहाँ गड़बड़ की या क्या हुआ. तो ये रिपोर्ट भी इंस्पेक्टर्स यानी कि पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही होती है, या फिर कंपनी एक्ट के तहत लॉयर्स इसको बना के दे रहे होते हैं, या इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो दे रहे होते हैं. तो इस रिपोर्ट जब ये आती है कोर्ट में, इस बेसिस पे फैसला लेना होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट की बेहतरी में भलाई हो, पब्लिक इंटरेस्ट के हक में फैसला जाए. यानी सिर्फ डायरेक्टर के पर्सनल या कंपनी के पर्सनल उस पे नहीं देखते. हम देखते हैं कि पब्लिक को इससे नुकसान हुआ उसके इस एक्शन से,
पब्लिक के फायदे की क्या बात है, और पब्लिक के फायदे की जो बात है उसी बात पर हम फैसला सुनाएंगे. So if the court is satisfied that the person's conduct in relation to the company makes that person unfit to be concerned in the management of a company, that then it may make a disqualification order. Again, the maximum is 15 years. 15 years तक वो disqualified रहेगा. तो अगर कोर्ट को ये पता चल गया, एविडेंस भी आ गया और साबित भी हो गया कि ये बंदा जिस तरह कंपनी में काम कर रहा है या काम करवा रहा है वो सही नहीं है, वो अनफिट है, वो किसी भी एतबार से अनफिट हो सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, मे बी कॉन्डक्ट वाइज, मे बी एक्ट वाइज. Right. तो दैट इज व्हाट इट मीन्स टू से. ओके, नेक्स्ट. The court must make an order where it is satisfied that the following apply. And what is the following? A person has been a director of a company which has at any time become insolvent, and their conduct as a director of the company makes them unfit to be concerned in the management of a company. The extent to which the person was responsible for company breaking the law, the extent to which the person was responsible for causing the company to become insolvent, the nature and extent of the loss or damage caused by the person's conduct in such cases. So the minimum period of disqualification is 2 years and maximum, of course, it would be 15 years. ठीक है. अच्छा, ये जो पॉइंट्स थे ये अगेन रेपिटेटिव पॉइंट्स थे. ये कॉमन सेंस Right. भी आप पता लगा सकते हो कि भैया जो शख्स अपनी कंपनी का भला नहीं चाह रहा और जो बार बार कानून तोड़ रहा है, जो बार बार पब्लिक इंटरेस्ट में उसको क्या कहते हैं, बेईमानी कर रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं, तो उस शख्स को हम कैसे लगा सकते हैं डायरेक्टर की पोस्ट पे? नहीं लगा सकते, डिस्क्वालीफाई करो, Right. निकालो यहाँ से. नेक्स्ट. Right. Disqualification periods minimum 2 years, maximum 5 years. And if the conduct was not very serious, अगर serious conduct है तो 6 to 10 years, even over 10 years, 15 years. Now, mitigation of disqualification. आप कैसे disqualify करने से बचा सकते हो किसी भी डायरेक्टर को? अगर वो डिसऑनेस्ट नहीं है, उसने साफ साफ अपनी बात सारी खुल के बता दी. लॉस ऑफ डायरेक्टर्स ओन मनी इन द कंपनी, उसके अपने पैसे भी डूबे हैं. यानी जब अपने पैसे भी डूबे हैं तो इससे ये मतलब होता है कि आप कंपनी को जान के नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे थे, हो गया आपसे, और इस चक्कर में आपके भी तो पैसे डूबे. तो सिर्फ कंपनी का तो नुकसान नहीं हुआ, आपका खुद का भी हुआ. सर, एब्सेंस ऑफ पर्सनल गेन, उसका कोई जाती मफाद नहीं था इस डिसीजन के पीछे. एफर्ट्स टू मिटिगेट द सिचुएशन, उसने कोशिश की थी इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए कि कम से कम नुकसान हो. लाइकलीहुड ऑफ री ऑफेंडिंग, वो ऑफेंड नहीं हो रहा, वो बोल रहे मैं हक पे था, मैं ऑफेंड क्यों हूँ. प्रोसीडिंग्स हैंगिंग ओवर डायरेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, प्रोसीडिंग्स हैंगिंग ओवर डायरेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से उसके ये केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, और बहुत टाइम से जब चल रहा है तो जाहिर है एक चीज वक्त के साथ थोड़ी पुरानी हो जाती है, लिंगर ऑन करती है, एंड बिला वजह उसमें कोई ठोस. देखो, एक चीज लिंगर ऑन कब करेगी, मुझे एक बात बताओ, रियल लाइफ में भी कोई भी चीज लिंगर ऑन कब करेगी? बिला वजह जब टन उसका रही है, केस कमजोर. छोटी सी बात का राई का पहाड़ बन रहा है, कब लिंगर ऑन करेगी? जब उसमें कोई दम ही नहीं है. Right. अगर उस बात में दम होगा तो वो केस फौरन सॉल्व होगा, एविडेंस आ जाएंगे, फौरन सजाए मौत या सजाए जो भी सजाएं सुनाई जाएंगी. और अगर नहीं, Right. कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा. पर एक चीज Right. लिंगर ऑन करने का मकसद है कि छोटी छोटी चीजों को आप बिला वजह, कोई उसमें पुख्ता चीज नहीं है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, बट लिंगर ऑन करना है बस, लटकाना है केस को, तो अंदर कुछ भी नहीं है. ठीक है. प्रोसीजर्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई करने का प्रोसीजर क्या होगा? स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रिपोर्ट डायरेक्टर्स, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिसीवर्स, लिक्विडेटर्स ऑल हैव अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू रिपोर्ट टू डायरेक्टर्स to the government where they believe the conditions for a disqualification order have been satisfied. The Secretary of the State then decides whether to apply the court for an order, but if they do decide to apply, they must do so within 2 years of the date on which the company became insolvent. जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट होती है मतलब उसका पैसा खत्म हो गया, अब उसको जाहिर है कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, चीजें हैं, बेच बाच के कंपनी वाइंड अप करनी है. तो ये जो कंपनी वाइंड अप करने का
जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है, रिसीवर के पास होती है, या फिर लिक्विडेटर के पास होती है। और ये लोग जब ये कर रहे होते हैं तो इनका डायरेक्ट रिपोर्ट इनको करनी होती है डायरेक्टर को, Right. डायरेक्टर को रिपोर्ट करनी है। बट अगर डायरेक्टर खुद डिस्क्वालीफाई हो रहा है क्योंकि उसकी वजह से इंसॉल्वेंट हुई कंपनी, तो फिर क्या होगा? फिर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कोर्ट को एक ऑर्डर करेगा और उसमें विद इन 2 years वो बोलेगा कि कंपनी जो इंसॉल्वेंट हुई है उसके पीछे डायरेक्टर का हाथ है, उसको डिस्क्वालीफाई करो। नाउ एक्टिंग एज अ डायरेक्टर वाइल्स डिस्क्वालिफाइड, अब आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो मगर फिर भी आप एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, तो दैट इज अ सीरियस ऑफेंस, इट्स अ क्राइम, एंड द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कमर्शियल मिसजजमेंट। अगर उन्होंने कोई ऑर्डिनरी कमर्शियल मिसजजमेंट किया, कोई फैसला किया जो कंपनी के लिए नुकसान था, तो दिस इज इनसफिशिएंट टू जस्टिफाई डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई एक फैसले का गलत होना ये काफी नहीं है, आपको और भी चीजें, ठोस सबूत चाहिए कि हम डिस्क्वालीफाई क्यों करें। बिकॉज आपको पता है जब डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होता है उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है, और फिर कोई और जगह उसको नौकरी मिलना, काम मिलना, डायरेक्टर की पोजीशन तो दूर की बात है बट एक नॉर्मल पोस्ट पे भी एज एन एम्प्लॉय जॉब मिलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है आप पे कोर्ट का और स्टेट का, गवर्नमेंट का ठप्पा लग गया ना कि आपने बहुत गलत काम किया है या आपने इलीगल तरीके से कंपनी चलाई है, आपने नुकसान किया है कंपनी का जान के। सो दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा, अब जरा ये केस पढ़िए, द फैक्ट्स एंड द डिसीजन। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में? The consisting of two furniture companies carried on trading while in serious financial difficulties, while the director tried to find a way out of the situation. Continued to take deposits from customers for furniture to fund its working capital requirement. और डिसीजन क्या आया, फैसला क्या है? The directors were not disqualified for acting in this way, as their behavior was not dishonest or lacking in commercial probity and did not make them unfit to manage a company. They had been trying to explore realistic opportunities to save the business and were not to blame for the eventual collapse of the businesses and the subsequent loss of customers. एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, सबसे पहले तो इस केस को देखें। यहाँ पे Two क्लेमेंट कौन है? furniture company यहाँ पे क्लेमेंट कौन है? claimant trade in industry. क्लेमेंट। एंड डिफेंडेंट कौन है? Secretary of the state. अच्छा, right. ठीक है, तो अब ये जो डिफेंडेंट है यानी डायरेक्टर के ऊपर केस हुआ है ना, तो Right. डायरेक्टर के ऊपर किसने केस किया है? री यूनो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसने किया। उसने कहा कि भाई जब आपको पता था कि आपकी कंपनी में पैसा नहीं है और आप सीरियस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में हो, आपने और ऑर्डर क्यों लिया? वो भी दो फर्नीचर कंपनीज, वो भी आपके दोनों ऑर्डर लिए जा रहे थे फर्नीचर्स के लिए और अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किए जा रहे थे, तो ये आप ऐसा क्यों कर रहे थे? तो हम आपको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमने आप पे केस कर दिया। तो डायरेक्टर्स, कोर्ट का डिसीजन क्या आया कि डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर डिसऑनेस्ट नहीं था, वो तो अपना कारोबार कर रहे थे सिंपली, जो कोई भी कारोबारी शख्स करेगा कि जाहिर है ऑर्डर्स तो लेगा ना, तब तो पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो वो डिलीवरी भी कर देगा। So lacking in commercial probity and would not make them unfit to manage a company. They had been trying to explore realistic opportunities to save the business and were not to blame for the eventual collapse of the business and the subsequent loss of customers. वो तो कोशिश कर रहे थे कि कंपनी बच जाए, बट अगर वो नहीं बचा सके तो उसका मतलब ये तो नहीं कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दो, सारी जिंदगी उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल या निशान आ जाए। Right. कि वो डिसऑनेस्ट तो नहीं थे ना, किसी क्राइम में भी इन्वॉल्व नहीं थे, वो तो जेन्युइनली तो एक तरीकेकार होता है, कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। Now, a lack of commercial probity or gross negligence or total incompetence, however, might render disqualification appropriate. यानी ये जो वर्ड है ना, लैक ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी,
इस वर्ड का मतलब है ग्रॉस नेग्लिजेंस, इस वर्ड का दूसरा नाम है टोटल इनकॉम्पिटेंस। अगर ये प्रूव हो जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। Now next, Secretary of State for Trade and Industry versus Thornbury 2008, इस केस के फैक्ट्स बताएं। The director failed to carry out any further investigation after receiving verbal assurances from other director regarding the financial status of the company. The company was in breach of its statutory obligation to pay HMRC. Although the director have not been dishonest, it has not been reasonable for him to leave matter in other director's hand to such a degree. He was held to be unfit to be concerned in the management of the company and disqualified for 2 years. बात समझ आई, हुआ क्या है यहाँ पे? Yes. फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स ये कि डायरेक्टर फेल हो गया, उसने कैरी आउट नहीं की फर्दर इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर रिसीविंग वर्बल अश्योरेंसेस फ्रॉम अदर डायरेक्टर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, मगर उसने बिलीव कर लिया दूसरे डायरेक्टर्स की बातों पे और उन्हीं पे सारे मामला छोड़ दिए। The company was in breach of its statutory obligations to pay HMRC. हर साल कंपनी को हर मैजेस्टीज रेवेन्यू कमिटी को पे करना होता है, और ये वो लोग फेल हो गए, उन्होंने नहीं पे किया। जब पे नहीं किया तो जाहिर है फिर तो एक्शन होगा, और जब एक्शन हुआ तो पता चला कि डायरेक्टर डिसऑनेस्ट तो नहीं था, मगर उसने सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स और टैक्स जैसा इम्पोर्टेंट मैटर जो कि क्वीन को जाना था, क्यों छोड़ दिया, दूसरे डायरेक्टर्स पे भरोसा किया। तो ही सीम्स टू बी अनफिट, तो उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं इंटेंसिटी पे मैटर करता है कि केस की इंटेंसिटी क्या है, उसी मुताबिक सजा सुनाई जाएगी, इंटेंसली या लाइट मोड पे। अब 2 साल कोई बहुत बहुत ज्यादा बड़ी सजा तो नहीं लग रही, 2 साल के लिए तो सिर्फ डिस्क्वालीफाई की, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं थी। दूसरे डायरेक्टर्स भी तो डायरेक्टर्स थे ना, किसी एम्प्लॉय के हाथ पे तो नहीं छोड़ा था ना, डायरेक्टर के ही हाथ में छोड़ा गया है। लेकिन जाहिर है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला टाइम पे, तो फिर होगा ना। अच्छा, बहुत सारे केसेस ना तहरीर में थोड़े से आपको Yes. वो भी लगेंगे वियर्ड, एब्सर्ड। क्यों? अभी देखिए इस केस की मैं बात करूं, जो डायरेक्टर्स जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फेल हो गए, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया HMRC को टाइम पे, उसको Yes. कुछ नहीं बोल रहे आप, या उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, मगर मेंशन किसके बारे में, उस डायरेक्टर के बारे में जिसने हाथ उठा लिए थे या जिसने दूसरे डायरेक्टर्स पे रिलाई किया इस मामले में, उसको सजा दे रहे हैं कि उसने तो दूसरे पे रिलाई किया ना, दूसरों ने तो बोला बोला कि हाँ हमने सब कुछ देख लिया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो जिन्होंने बोला एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आप उनको पकड़ो ना जाके कि क्यों बोला एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, क्यों नहीं टैक्स पे किया, उन्होंने उनसे पूछे। मगर चूंकि यहाँ पे एक आपको लॉ के बारे में समझाना है कि डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कब कब कर सकते हैं, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि जब इस डायरेक्टर के मतलब इन सिचुएशंस में आपके सामने आ गया ना, पर्दा उठ गया कि ये बंदा केपेबल है भी डायरेक्टर बनने के या नहीं, इस लायक है भी या नहीं, इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ये बोझ नहीं उठा पा रहा, ये फेयरली डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो अभी ये छोटा डिसीजन इसने फेयरली नहीं लिया, आगे चल के कौन बड़े डिसीजन में क्या करेगा, ये तो कंपनी को नुकसान पहुंचा देगा। ये Right. नाउ पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स की पावर्स ऑलरेडी गिवन है कि डायरेक्टर के पास कितनी कोई पावर है। सो डायरेक्टर्स पावर्स में बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टैट्यूट या स्टेट की तरफ से या आर्टिकल्स की तरफ से, अदरवाइज डायरेक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर। अगर उनको रोक कौन लगाता है, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय आर्टिकल्स। पढ़िए। Many transactions, such as alteration of the article or reduction of capital, must by law be affected by passing a special resolution. If the director proposes such changes, they must secure the passing of the appropriate resolution by shareholder in general meeting. स्पेशल Restriction रेजोल्यूशन किसे कहते हैं?
Kareem, what is a special resolution? बाय लॉ आपके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, बाय गवर्नमेंट कह लो, मतलब उन तरीके से, जैसे शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, फिर उसके बाद आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा, ये सब करना, ये बाय लॉ आपको बताया जाता है कि आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। रेजोल्यूशन का मीटिंग मतलब है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फैसला होगा। तो जो यस, मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में फैसला होता है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। राइट। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि जो भी फैसला होगा वो 75% वोटिंग से विन होना चाहिए। दैट इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यानी कि सिर्फ 50% भी वोट्स मिल गए 50%। तो फिर इनफ है, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड दिस इज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे हमें मोर देन 75% वोट चाहिए होता है उस फैसले को पास करने के लिए, और कुछ फैसले राइट। ऐसे होते हैं जिसमें से 50% भी वोटिंग मिल जाए तो आप वो फैसला पास कर देते हैं। ठीक है। restrictions राइट। imposed by articles भी कुछ restrictions लगाते हैं। set a maximum amount which directors may borrow, wish to exceed that limit they should seek authority from general meeting। अगर directors borrow करना चाह रहे हैं law से, when the directors clearly have the necessary power their decision may be challenged if they exercise the power in the wrong way। right बेटा, lights on कर। ठीक है, तो यहाँ पे restrictions imposed by article समझ आ गया, आगे बढ़े। राइट, जी समझ आ गया। They must exercise their powers in what they honestly believe to be interest of the company for a proper purpose, being the purpose for which the power is held। Now, members control of directors। members का directors पे क्या control है? पढ़िए। There is a division of power नहीं, वहाँ between पे the नहीं, यहाँ से बस bullets पढ़। the member appoint the director and may remove them from the office. The members can be altering the article, special resolution needed, relocate powers between the board and the general meeting. Article may allow the member to pass a special resolution ordering the director to act or refrain from acting in a particular way. Such a special resolution cannot invalidate anything the director have already done. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। मेंबर्स आर्टिकल्स को थोड़ा बहुत चेंज करके डायरेक्टर्स की पावर को वो कर्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को फोर्स कर सकते हैं कि वो एक्ट करें इन अ सर्टेन वे या फिर रिफ्रेन करें फ्रॉम अ सर्टेन वे। Okay. Directors are not agents of the members, please remember। They cannot be instructed by the members in general meeting as to how they should exercise their power। The director powers are derived from the company as a whole and are to be exercised by the directors as they think best in the interest of the company। They are not the agents of the members. They are stewards, basically। Alright, control by the law। Law कितना control करेगा? Certain powers must be exercised for the proper purpose and all powers must be exercised bona fide for the benefit of the company। Bona fide का क्या मतलब है? Benefit of the company। Bona fide का मतलब है for the benefit of the company। Failure by the directors to comply with these rules will result in the court setting aside their powers unless the shareholders ratify the directors' actions by ordinary resolution। अच्छा जी, आगे powers of the chief executive officer। अभी हमारे पास अल्लाह भला करे कितने टॉपिक्स रहते हैं। We have powers of the chief executive officer, powers of an individual director and duties of the director। सिर्फ 3 टॉपिक्स रहते हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। Powers of the chief executive directors को managing director भी कहते हैं। Basically, we know that the chief executive is responsible
to carry out the day-to-day duties, to carry out the company, basically governing the company on a daily basis. He has the actual authority. And then, although appointment as CEO or MD has special status, it may be terminated just like that of any other director. CEO बहुत important post होती है, तो उसको रिस्पेक्ट भी उसी तरह से मिलती है, उसका स्टेटस भी वैसा ही होता है, बट उसको आप टर्मिनेट कर सकते हो लाइक एनी अदर डायरेक्टर एंड देन रिवर्ट टू द पोजीशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डायरेक्टर। वो सीईओ से एक आम डायरेक्टर बन सकता है। Alternatively, the company in general meeting may remove them from their office of director and they immediately cease to be CEO. Since being a director is a necessary qualification for holding the post. यानी एक सीईओ का डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर की पोजीशन के बगैर वो सीईओ नहीं बन सकता। तो अगर किसी ने उसको डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाई कर दिया तो मतलब ऑटोमेटिकली वो इस पोजीशन से भी आउट। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, डायरेक्टर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी नॉट द मेंबर्स। हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा कि एजेंट्स डायरेक्टर्स मेंबर्स के एजेंट्स नहीं है, डायरेक्टर कंपनी के एजेंट्स, ठीक है। उनके पास अपेरेंट अथॉरिटी भी हो सकती है एंड अथॉरिटी बाय होल्डिंग आउट भी हो सकती है। इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? अपेरेंट अथॉरिटी एंड अथॉरिटी बाय होल्डिंग आउट, वर्च्यू ऑफ होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट मीन्स के वो आपको बताई नहीं गई है थ्रू मतलब, लेकिन वो आपके पास होती है आर्ट यस, एज अ डायरेक्टर आपके पास एग्जैक्टली, होगी, एग्जैक्टली। वो पोस्ट के साथ आती है। अपेरेंट राइट। अथॉरिटी बताई जा रही है, बकायदा दी जा रही है, बकायदा बोल कर दी जा रही है। होल्डिंग आउट बाय पोजीशन आपके पास वो चीज हो रही है, बाय पोजीशन, बाय योर पोस्ट। अब कोई माँ बनती है तो उसको बताया थोड़ी जाता है कि अब तुम माँ बन गई हो, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी। नो, खुद से पता चल जाता है, ठीक है, खुद से एहसास हो जाता है। होल्डिंग आउट वो जैसे ही आप माँ बने आपके अंदर कुदरत वो फीड कर देती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर कंपनी के कुछ लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर तो थर्ड पर्सन यही समझेगा ना कि आप डायरेक्टर हो, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट वैसे ही हो रही है, सब बॉस बॉस करके बुला रहे हैं, आपकी बात मानी जा रही है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपको हर मीटिंग में बुलाया जा रहा है, तो थर्ड पर्सन को यही लगेगा कि ये डायरेक्टर है। और अपेरेंट जो किसी ने बोला, अनाउंस किया कि मिलिए हमारे डायरेक्टर साहब से, तो ये एक अपेरेंट ऑब्वियस हो गया, बोल कर दिए, ठीक है। पढ़िए डेफिनेशन अपेरेंट अथॉरिटी। Apparent authority is the authority which an agent appear to have a third party. A contract made within the scope of such authority will bind the principal even though the agent was not following their instructions. क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अथॉरिटी जो आप थर्ड पार्टी को दे रहे हो, बट वो कुछ प्रिंसिपल उसमें भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी। अपेरेंट, अब देखो एज, यहाँ पे हम दरअसल टॉपिक पढ़ रहे हैं थोड़ा सा एजेंसी का, ठीक है। राइट। अब मैंने तहरीम तुमको बोला दैट तहरीम आज के बाद यू आर माई एजेंट, और आपको कोई भी शख्स मिले ना, यू हैव टू टेल देम कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ ACCA के, और अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो मुझसे रब्ता करें। वट एवर, यू आर एन एजेंट ऑफ ISA, हिसार स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एवरीवेयर यू गो, वेरेवर यू गो। तो मैंने आपको बोलकर ये अथॉरिटी दी, ठीक है। अब तहरीम दूसरी सिचुएशन ये है कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और आपको पता है कि मैं ISA चला रही हूँ, और आप खुद से आगे बढ़ के खुद से मुझे एज अ फ्रेंड हेल्प आउट करने के लिए, या ISA को आपको अच्छा लग रहा है कि ISA ग्रो हो, आप सबको बता रहे हो कि अरे ISA इंस्टीट्यूशंस लो, फलाना फलाना बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो अब आपने क्या किया, बाय आपने खुद से ये जिम्मेदारी ले ली एजेंसी की, मैंने आपको नहीं दी, मैंने आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी, अपेरेंट अथॉरिटी नहीं दी। बट होल्डिंग आउट जब आपने मुझे आके एज अ फ्रेंड मुझे शेयर किया कि पता है मेरा एक नेबर था, उसको इससे करना था, तो मैंने तुम्हारे इदारे का बताया,
तो मैं खुश होंगी, अरे थैंक यू, अरे वाह तहरीर, जबरदस्त, एक ही काम जिंदगी में अच्छा किया। ठीक है। अब मैं इस तरह दोस्ताने वे में आपको ये बोल दूंगी, तो Right. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने होल्ड आउट किया, मैंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि आपने अगर एजेंट की तरह किसी से डील किया और मैंने उसको एक्नॉलेज कर दिया, तो मतलब आई एम होल्डिंग आउट, गिविंग यू द Right. परमिशन। Right. ठीक है। Right. नेक्स्ट, फ्रीमैन एंड लॉकियर वर्सेस बकहर्स्ट पार्क प्रॉपर्टीज लिमिटेड 1964, फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? A company carried on a business as a property developer. The article contained a power to appoint a managing director, but this was never done. One of the director of the company to the knowledge of, but without the express authority of. The remainder of the board acted as if he were a managing director. He found a purchaser for an estate and also engaged a firm of architect to make a planning application. The company later refused to pay the architect fees on the ground that the director has no actual or apparent authority. फैसला क्या The, आया? com- the company was liable since, by its acquiescence, it had represented that the director was a managing director with authority to enter into contract that were normal commercial arrangement and which the board itself would have been able to enter. बात समझ आ रही है? यहाँ फड्डा क्या हुआ है? Right. फड्डा ये हुआ है कि एक बंदे को, हालांकि कंपनी में रूल था कि आपको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना था, मगर उन्होंने ऑफिशियली कभी मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया ही नहीं। और वन ऑफ द डायरेक्टर्स वो एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं, इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और हर काम में आगे आगे हैं और वो कर रहे हैं, तो बाकियों ने ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, बाकियों ने एक्सप्रेस अथॉरिटी नहीं शो की, लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं की, और उन्होंने ऐसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस कंपनी का, और उसकी हर बात Right. मान रहे हैं, कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके हर फैसले में। ठीक है। तो उसने कंपनी के बिहाफ पे एक परचेजर से अग्रीमेंट कर लिया, एक आर्किटेक्ट की फीस भी देनी थी, फलाना फलाना, मगर लेटर ऑन कंपनी ने फिर ऑब्जेक्शन किया, यानी दूसरे डायरेक्टर्स को फिर याद आया कि अरे खड्डा करते हैं, अब सही टाइम है, टांग गड़ाते हैं कि ये इसने खुद से कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और ये तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, और ऑफिशियली इसको हमने अपॉइंट भी नहीं किया, फिर इसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर किया? तो कंपनी, बाकी सब कंपनी उसके खिलाफ चली गई लेटर, और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। तो कोर्ट में फिर फैसला उस डायरेक्टर के हक में ही आया कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं आपने पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया? जब वो बिहेव कर रहा था एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, आप कर लेते ऑब्जेक्ट और अपना कोई नया बंदा अपॉइंट कर लेते एज मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये काम तो आपने नहीं किया, यानी आपने तो फिर बाय होल्डिंग आउट, बाय acquiescence, you gave the permission and authority to him to perform or to enter into the contracts. Otherwise why would he have done this? आप लोग की इजाजत Right. के बगैर वो कर ही कैसे सकता? So this is the holding out and apparent authority का difference. Next. In the Freeman and Lockyer case, the judge laid down 4 conditions which must be satisfied in claiming under the principle of holding out कि भाई अब केस आ गया कोर्ट में, तो अब जज ने बोला कि ये 4 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तभी आप सेटिस्फाई कर सकते हो क्लेम ऑफ होल्डिंग आउट को। Number 1, representation was made to them that the agent had the authority to enter on behalf of the company into the contract. Number 2, such representation was made by a person who had actual authority to manage the business. And number 3, they were induced by the representation to enter into the contract. They had in fact relied on it. There must be nothing in the articles which would prevent the company from giving valid authority to its agent to enter into the contract. तो ये 4 conditions अगर fulfill हो रही हैं, तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट जायज है, एक्टिव है, परफॉर्म हो रहा है, एप्लीकेबल है। क्लियर? कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो? Clear. नेक्स्ट, पावर्स ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टर। इंडिविजुअल डायरेक्टर की पावर क्या है?
They do not have the apparent authority to make general contracts. Removal from the office of director may be a breach of their service contract. If that agreement stipulates that there have to be status of director as part of the conditions of employment. Powers of an individual director who is not an MD, managing director. He is just an employee of the company. So being just an employee of the company, they do not have apparent authority to enter into contracts on behalf of the company. And secondly, removal of the office of director may be a breach of their service contract. अगर वो अपने contract को breach करते हैं तो उनको नौकरी से निकाला भी जा सकता है. ठीक है? Okay. Duties of directors, 7 principal duties and directors की. Number 1, fiduciary duty किसे कहते हैं? What is a fiduciary duty? Read the definition and explain it to me. Duty imposed upon certain person because of the position of trust and confidence in which they stand in relation to another. ये ड्यूटी हम लाइक ये पोजीशन उससे आती है, मतलब ट्रस्ट हम बेस पर हम उस पर ट्रस्ट करते हैं तो हम उसे ये ड्यूटी दे सकते हैं. ये कोई ड्यूटी देता नहीं है. फिड्यूशियरी ड्यूटी का मतलब है कि ड्यूटी आपको बकायदा दी नहीं जाएगी, बट बिकॉज ऑफ योर पोजीशन आपके ऊपर, आपके कांधों पे ये जिम्मेदारी पड़ चुकी है. नाउ इफ आई अपॉइंट यू एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस कि एक प्रिंसिपल क्या क्या करती है या उसको क्या क्या करना चाहिए. यू शुड बी So it's नोइंग. like holding out. It's a like holding out. यस, जस्ट बाय होल्डिंग अप. इट्स काइंड ऑफ, देखो होल्डिंग अप में आपने ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया, यहाँ पे आप ऑफिशियली अपॉइंट कर रहे हो मगर आप ड्यूटीज बता नहीं रहे हो, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है. अजम्पशन है कि आपको पता होगा. फिड्यूशियरी ड्यूटी है. अब अगर कल को कोई बाप बनता है तो उसको थोड़ी कोई आके बताता है कि देखो बाप बनने की ये ड्यूटीज होती हैं, बाप बन गए हो अब तुम्हें ये करना पड़ेगा. उसको पता है ना, बिकॉज हर बाप एक दिमाग में है ना कि एक बाप का यही रोल होता है और एक बाप की ये ड्यूटीज होती है. सबको पता है, कोई आके आपको नहीं बताएगा. तो इसी तरह अगर आपको डायरेक्टर बना दिया गया है तो डायरेक्टर करता क्या है, कोई भी आपको नहीं बताएगा आके. इट्स योर फिड्यूशियरी ड्यूटी. इट्स अज्यूम दैट यू विल बी नोइंग दैट बाय दिस पोजीशन व्हाट इट मींस टू डू. अब आपको एक Right. टीचर की नौकरी मिल गई है. आप एज अ टीचर आप कहीं पे जाके पढ़ा रही हो एंड यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल होता है, क्योंकि इट इज वेरी मच ऑब्वियस कि स्कूल्स आर ऑपरेटिंग ड्यूरिंग दीज आवर्स 8 to 2 in every normal city and in every normal condition. Unless the timings are changed, it is an afternoon school, it will be mentioned in the contract. Otherwise, the timings are not mentioned in the contract. Why? It is assumed that you know. It's a fiduciary duty. Okay. So by fiduciary duty, it means when you are in a position of a director, when you are in a position of a member, when you are in a position of a managing director, or you're in a position of a CEO, nobody is going to come and give you instructions that you should do this, you should do that, you should not do this, you should not do that. It is assumed and presumed that the duties are clear to you and you know them by heart because it is by the position. Because of the Right. position of trust and confidence in which they stand. जब आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, अल्लाह आप खुद सोचो ना साहब, आप इतने इंटेलेक्चुअल हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तभी तो आपको प्रिंसिपल की पोजीशन पे बिठाया जा रहा है, तभी तो आपको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बिठाया जा रहा है. तो इतने जब इंटेलिजेंट हो तो बी ट्रस्ट एंड हैव कॉन्फिडेंस दैट यू नो व्हाट योर ड्यूटीज आर, एंड दैट्स अ फिड्यूशियरी ड्यूटी. ठीक है जी. A director may put their own interest ahead of the company's. A director may be negligent and liable to an action and tort. तो ये बेसिकली आप कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो अगर आप ये दोनों चीजें कर रहे हो. Who are the duties owed to? आप जवाब दे किसको? To the company, not to the members. And next, who are the duties owed by? Is called director. He could be a shadow director, he could be de facto director, he could be de jure director. Duties and the articles of the association. कंपनी का, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन.
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आम जबान में हम कहते हैं कि ये कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कंपनी कैसे कैसे चलेगी, क्या कानून है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या मिशन है, क्या विजन है, सब कुछ आर्टिकल्स में लिखा होगा। आर्टिकल्स में प्रोवाइड मोर ऑनरस रेगुलेशंस देन द एक्ट। ऑनरस रेगुलेशंस एंड द एक्ट, एक्ट यानी कानून, कंपनीज एक्ट को फॉलो करोगे तो वो ज्यादा डेप्थ में होगा, डिटेल में होगा, हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो। बट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करोगे तो वो इजी रेगुलेशंस होंगे और कंपनी रिलेटेड डायरेक्टली स्पेसिफिक होंगे, कस्टमाइज्ड होंगे कंपनी के हिसाब से। If a director has acted in accordance with the articles, they cannot be in breach of the duty to exercise independent judgment. Some conflicts of interest by independent directors are permissible by the articles. Directors will not be in breach of duty concerning conflicts of interest if they follow any provisions in the articles for dealing with them. The company may authorize anything that would otherwise be a breach of duty. अब ये एक एक बुलेट आप मुझे समझाएं, क्या मतलब समझ आ रहा है आपको? इन ड्यूटीज आर्टिकल में ये एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल, आर्टिकल के जो भी एक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है और अगर उसको हम उनके ब्रीच नहीं करना अकॉर्डिंग होता चल है। रहे हैं तो मतलब हम बिल्कुल सही हैं, हमने कोई ड्यूटी ब्रीच नहीं की। दूसरा, अगर कौन? आर्टिकल ने परमिशन दी है तो फिर आप कुछ चीजें ऐसे कर सकते हो जो बाहर लग रही होंगी कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो डायरेक्टर ने अपने फायदे की बात की, कंपनी के फायदे की तो नहीं की। मगर अगर इसकी इजाजत आर्टिकल्स में है तो वो जायज है, तो कोई उसने गुनाह नहीं किया। ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात आ भी जाती है और उसको रिजॉल्व करने के लिए डायरेक्टर कुछ करता है जो कि आर्टिकल में मेंशन्ड है या उसका प्रोविजन है या उसकी अलाउंस है, तो फिर दैट मीन्स डायरेक्टर इज अ लॉफुल पर्सन, उसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। और चौथा पॉइंट है कि कंपनी ऑथराइज कर सकती है, और अगर जो जो काम कंपनी ने ऑथराइज किया है तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी का हिस्सा नहीं बनता। यानी कंपनी का मतलब है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर उसकी इजाजत दे रहे हैं, तो फिर इट इज नॉट, अगर वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा भी तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि सबने उसकी इजाजत दी है। ठीक है। Now, duties of directors may again act within their powers, promote the success of the company, exercise independent judgment, exercise reasonable skill, care, diligence, avoid conflicts of interest, don't accept gifts from third parties, declare an interest in a proposed transaction or arrangement। ये सब ड्यूटीज पे आ गया, ये आपको याद करना पड़ेगा। इन सब के छोटे छोटे पैरास भी गिवन है, केसेस भी गिवन है, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बट जस्ट नोइंग द ड्यूटी इटसेल्फ इज इनफ, एंड वी हैव already discussed a lot about all of the duties mostly. We have covered the duties. But still the reading is must, एक दफा आपको पूरा पढ़ना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि अगर कोई डायरेक्टर ड्यूटी को ब्रीच करता है तो नंबर वन, damages payable to the company, number two, restoration of company property, number three, repayment of any profits made by the director, number four, rescission of contract। rescission of contract यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, नलिफाई कर दे, जैसे कि कभी था ही नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेमेडीज अगेंस्ट डायरेक्टर्स। Remedies against directors for breach of duties include accounting to the company for a personal gain, indemnifying the company and rescission of contract। जो अभी हमने ऊपर चीजें पढ़ी ना, ये वही है, रिपीट हुआ है, नथिंग न्यू, रिपीट हुआ है। पर्सनल गेन, अगर डायरेक्टर ने कोई पर्सनल गेन कमाया है तो वो उसे कंपनी को वापस करना पड़ेगा। इंडेमनिफाइंग द कंपनी, कंपनी का कोई नुकसान हुआ है तो वो उसको भरना पड़ेगा। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर की वजह से हुआ है जिसका कंपनी का नुकसान हुआ है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा और मतलब कंपनी को रीस्टोर करना पड़ेगा जैसे कि पहले थी। डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी किस हद तक है, इम्पोर्टेंट।
डायरेक्टर की पर्सनल लाइबिलिटी किस हद तक है? As a general rule, a director has no personal liability for the debts of the company. But there are certain exceptions. First exception, personal liability may arise by lifting the veil of incorporation. Second, a limited company may, by its articles or by special resolution, provide that its directors shall have unlimited liability for its debts. Third, a director may be liable to the company's creditors in certain circumstances. And fourth, in cases of fraudulent or wrongful trading, liquidators can apply to the court for an order that those responsible are liable to repay all or some specified part of the company's debts. क्या बात हो रही है? डायरेक्टर्स की पर्सनल अपनी थ्रू पर्सनल लायबिलिटी उनकी क्या होगी, अपनी जेब से क्या देंगे जब वो अगर कोई कंपनी का नुकसान है या कंपनी की तरफ से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कंपनी किसी केस में इन्वॉल्व हो गई है और कंपनी पर कोई इल्जाम है, तो उसका हर्जाना और उसका कंपेंसेशन और उसकी पेनल्टी वो सब कौन देगा? तो वो डायरेक्टर अपनी जाती जेब से नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है, ये जनरल रूल है। डायरेक्टर जाती तौर पे इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंपनी के डेट्स को पूरा करने के लिए, कंपनी के वादों को पूरा करने के लिए जो उसने किसी और से किए हैं, वो अपनी जेब से कुछ नहीं देगा। बट देर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में अगर डायरेक्टर पकड़ा गया कि ये डायरेक्टर की वजह से कंपनी फ्रॉड की है या ये डायरेक्टर की वजह से कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है या ये डायरेक्टर ही पीछे मिला हुआ था, तो कोर्ट क्या करेगी? बेल को लिफ्ट करेगी। ये वर्ड आपने F1 में शायद सुना होगा। राइट। It's going to lift the veil of incorporation. देखो, आई डोंट नो आपने F1 दिया है, उसकी नॉलेज अभी है नहीं है। कंपनी is considered to be a separate legal entity। क्या मतलब इस बात का? कि जब एक कंपनी फॉर्म होती है या जब एक कंपनी की पैदाइश होती है तो उसका बकायदा तौर पे बर्थ सर्टिफिकेट बनता है जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट बनने के बाद कंपनी लीगली एक सेपरेट लीगल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है गवर्नमेंट की नजरों में कि ये कंपनी ए है, इसकी पैदाइश फलाना तारीख को हुई और ये खुद रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस से। यानी कि इसका ओनर अगर मर भी जाए, इसका फाउंडर अगर मर भी जाए, कंपनी जिंदा रहेगी। वो कंपनी की मौत नहीं होती, फाउंडर की मौत कंपनी की मौत नहीं होती। तो कंपनी अगर लॉस में है तो उसका हरगिज मतलब नहीं कि फाउंडर लॉस में है। कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन। बट वी ऑल नो दैट कंपनी कोई जिंदा, वाकई में जिंदा लाइफ पर्सन तो नहीं है ना, लाइफ पर्सन तो नहीं है ना। तो हम सबको पता है कि इसके पीछे कुछ लोग ही इसको चला रहे होते हैं। तो जब हमें पता चल जाए कि कंपनी मसले में है या कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्जाम है, तो हम फिर बेल को हटाते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये कंपनी के पीछे चेहरा कौन था, चेहरे किस किस के थे, राइट। कौन मुलव्विस थे, कौन इस कंपनी के आड़ में गलत काम कर रहे थे। तो दैट इज द ऑब्वियसली पर्सनल, डायरेक्टर्स। ये एक्सेप्शन राइट। हो गया। सेकंड, लिमिटेड कंपनी जो है अपने आर्टिकल्स में ये मेंशन कर सकती है पॉइंट के स्पेशल रेजोल्यूशन के बेसिस पर ये फैसला किया जा सकता है कि डायरेक्टर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी डेट्स की, अगर तो उसके आर्टिकल्स में ये मेंशन है तो ये होगा। डायरेक्टर तब भी लायबल होगा जब कंपनी के क्रेडिटर्स को कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस में, वो डिपेंड करता है क्या है वो, जैसे ऊपर में अभी दो सर्कमस्टांसेस तो आपके सामने ही। तीसरा, in cases of fraudulent or wrongful trading, liquidators can apply to the court for an order that those responsible should pay the debt। यानी चूंकि कंपनी ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी, रॉन्गफुल ट्रेडिंग हो गया था, तो लिक्विडेटर्स यानी कि जो कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट को रेकमेंड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स चला रहे थे कंपनी को उन्होंने ईमानदारी के साथ नहीं चलाया, अमानत में खयानत की, फेयर बेसिस पे नहीं चलाया, डिसऑनेस्ट थे, रॉन्गफुल ट्रेडिंग की, तो लिहाजा आप उनको ही कसूरवार ठहराएं और जिम्मेदार करें कि वो कंपनी के तमाम डेट्स अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को पे सेल ऑफ करके पे करें। ठीक है, ये चार पॉइंट्स राइट। क्लियर हैं?
Yes. ऑलराइट, यहाँ पे एक केस है हमारे पास, ये पढ़ेंगे एंड वाइंड अप करेंगे। विलियम्सन एंड अनदर वर्सेस नेचुरल लाइफ हेल्थ फूड्स लिमिटेड 1998। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं? The director was sued personally by a claimant who claimed that they were misled by the company's brochure. The director helped prepare the brochure, and the brochure described him as a source of company's expertise. The claimant did not, however, deal with the director but with other employees. Decision: the House of Lords overruled the Court of Appeal and ruled that the director was not personally liable. In order to have been liable, they would have had to have been evidence that the director had assumed personal responsibility. Merely acting as a director and advertising his earlier experience did not amount to assumption of personal liability. फैक्ट क्लियर है, केस का मसला क्या था, फड्डा क्या था कि ब्रोशर में उसने मेंशन किया था कि भाई मेरी एक्सपर्टीज और मेरा ये और मेरा वो, लेकिन जब कस्टमर्स आए तो एम्प्लॉयज उनको डील कर रहे थे कंपनी के, तो एम्प्लॉयज ने फेल केस फाइल कर कस्टमर्स ने केस फाइल कर दिया कि भाई आपने तो ब्रोशर में दिखाया था कि आप एक्सपर्ट हैं, मगर आप यहाँ तो दूसरे एम्प्लॉयज हमें डील कर रहे हैं। तो फिर फैसला क्या आया कि नहीं, डायरेक्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज का, लायबल भी नहीं है, जाहिर है वो डायरेक्टर है, बीइंग अ डायरेक्टर एक एडवर्टाइजमेंट चला दिया तो क्या हुआ, वो अपने एक्सपीरियंस दिखा के, तो अगर एम्प्लॉय ने देख लिया तो क्या हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका कोई अगर जाती नुकसान हुआ है तो बताइए, ऐसे सिर्फ इस बात पे कि ब्रोशर में कुछ था, एडवर्टाइजमेंट में कुछ था और रियलिटी में कुछ और था, तो ये दिस इज नॉट वैलिड इनफ कि इस पे हम डायरेक्टर को पर्सनली लायबल क्रिएट करें। खैर, Right. क्लियर? यहाँ पे हमारा Right. चैप्टर कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटा सा क्विक क्विज है, ये आप खुद से घर पे कर लीजिएगा, ठीक है? अभी एक्चुअली आई जस्ट नीड टू गो समवेयर, इसलिए आज क्लास भी आपकी थोड़ी सी जल्दी रखवाई। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन, गोइंग गुड टिल नाउ। Yes. ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तहरीम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Okay, Allah Hafiz.